સબસ્ક્રાઇબ કરો દેવાંગ સર કેમિસ્ટ્રી ચેનલને બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરીને લેટેસ્ટ અપડેટ માટે. Hello friends, Standard 12 Chemistry subject, The World of Polymer, chapter number 15, stroke number 5, which will be from the NCERT page number 433 to end of the chapter. So let's begin. Copolymerization. Okay. So what is copolymerization? Copolymerization is a polymerization reaction in which a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize and form a copolymer. Okay. Then the copolymer can be made not only by the chain growth polymerization but also by the step growth polymerization. Means ये दोनों process से copolymerization हो रहा है. ठीक है. Then it contains the multiple unit of each monomer used in the same polymeric chain. Copolymers have the properties quite different from the homopolymer property. बहुत change होती है. For example, butadiene styrene copolymer, which is styrene butadiene rubber, is quite tough and good substitute for the natural rubber. वो natural rubber की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो. It is used for the manufacture of auto tires, floor tiles, footwear components, cable insulation, etc. Okay. Then the process you can see over here. Okay, in the case of the copolymerization, the butadiene and styrene, same reaction already we have done. There only instead of this benzene ring they have kept C6H5. आगे जो हम पढ़ गए यही रिएक्शन. ठीक है, उसमें ये स्टायरीन में बेंजीन की रिंग की जगह पे C6H5 लिखा हुआ था दोस्तों. ठीक है. सो ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपोलिमर, दैट इज स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर का फॉर्मेशन होने वाला है. ठीक है. ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये और ये ब्यूटावनथ्रीडाइन में दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ पे वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं. ठीक है. बाकी सब तो सेम होने वाला है. ठीक है. देन नेचुरल रबर. So rubber is a natural polymer and possesses the elastic properties. It is also termed as elastomer. उसको हम elastomer भी बोलते हैं. बहुत सारे उसके इस्तेमाल है. ठीक है. It is manufactured from the rubber latex, which is a colloidal dispersion of rubber in the water. Colloidal dispersion है ये rubber in water का. ठीक है. This latex obtained from the bark of the rubber tree and these trees are found in कुछ कौन सी कंट्रीज में ये सब मिल रहा है. ये जो रबर का ट्री है, ठीक है, इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड साउथ अमेरिका. ठीक है. Then natural rubber may be considered as a linear polymer. स्ट्रेट लाइन है वो. ठीक है. ऑफ आइसोप्रीन. आइसोप्रीन IUPAC नेम क्या है? 2-methyl-1,3-butadiene. ठीक है. एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एन cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन. इसको हम cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन भी बोल सकते हैं. ठीक है. आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो. दिस वन इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन. ऑल इज लिंक्ड. ओके, विद द CH2. सब जो है वो यहाँ CH2 से जुड़े हुए हैं. ठीक है. Then natural rubber, the cis polyisoprene molecule consists of various chains held together by the weak van der Waals interaction. Weak interaction से जुड़े हुए थे and has a coiled structure. ठीक है. Thus it can be stretched like a spring and exhibit elastic properties. ठीक है. ये weak interaction की वजह से ही उसमें elastic properties होती है. ठीक है. Then vulcanization of rubber. ओके, ये सभी जो प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉर्टेड आउट बाय यूजिंग द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. ओके, नेचुरल रबर बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन 335 केल्विन एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर्स दैट इज लेस देन 283 केल्विन टेम्परेचर. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो सॉफ्ट हो रहा है. ठीक है. टेम्परेचर कम कर रहे हो तो वो ब्रिटल हो रहा है. ठीक है. एंड शोज द हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. ठीक है. तो ये उसकी वीकनेस है नेचुरल रबर की. ठीक है. इट इज सॉल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ओके, टू इम्प्रूव अपॉन दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टी को इम्प्रोवाइज करने के लिए ओके वल्केनाइजेशन इज कैरिड आउट. ओके, देन कैसे करना है वल्केनाइजेशन? दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग ऑफ मिक्सर ऑफ रो रबर. जो रबर है हमारे पास के लेटेक्स, उसको सल्फर के साथ हीट करना है 373 केल्विन टू 41 केल्विन टेम्परेचर पे. ठीक है. ऑन वल्केनाइजेशन ऑफ सल्फर फॉर्म्स अ क्रॉस लिंकिंग. सल्फर के साथ क्रॉस लिंकिंग हो जाएगा. ठीक है. साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड दस रबर गेट्स स्टिप्ड. ओके, देखते हैं. देखो यहाँ पे दिखाई गया है. ठीक है. सल्फर के साथ लिंकेज होने वाला है. ठीक है. So in the manufacture of the tire rubber, 5% of sulfur is used and cross-linking agent. Okay, the probable structure of vulcanized rubber molecules are shown below. Okay, ये आप देख सकते हो. अलग अलग probability है. ठीक है. दी पहली probability में आप देखो
ठीक है, तो यहाँ पे है, ठीक है, 2 सल्फर का लिंकेज है, एक मोलिक्यूल 2 मोलिक्यूल को जोड़ दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे थ्रू सल्फर ये दोनों को जोड़ा है, यहाँ पे 2 सल्फर के थ्रू था, यहाँ पे 1 सल्फर के थ्रू है, ठीक है। देन सिंथेटिक रबर क्या है? ओके, सिंथेटिक रबर इज एनी वल्केनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर विच इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, डबल लेंथ स्ट्रेच हो सकती है और उसको स्ट्रेच करने के बाद वो ओरिजिनल में भी आ जाता है, ठीक है, जैसा था वैसा। Thus the synthetic rubbers are the either homopolymers of buta-1,3-diene, okay, or copolymers of buta-1,3-diene with the other unsaturated monomer, means वो होमोपोलीमर है या फिर कोपोलीमर है, ठीक है। देन सबसे पहला जो एग्जांपल दिया गया है दैट इज द नियोप्रीन। सो नियोप्रीन और polychloropene is formed by the free radical polymerization of chloropene, okay. It has a superior resistance to the vegetable and mineral oils. It is used for manufacturing of conveyor belts, gasket and houses, ठीक है। सो नियोप्रीन जो है, ठीक है, 2-chloro-1,3-butadiene का पॉलीमराइजेशन करके नियोप्रीन का फॉर्मेशन करने वाले हम, ठीक है। देन ब्यूनाएन, ब्यूनाएन इज ऑब्टेन by the copolymerization of buta-1,3-diene, okay, of the acrylonitrile in the presence of the peroxide catalyst. It is resistant to the action of the petrol lubricating oil and the organic solvent, okay. It is used in the making of oil sheets and tank lining, etc, okay. देन हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म, buta-1,3-diene और acrylonitrile जो है दोनों का कोपोलीमराइजेशन करके ब्यूनाएन का फॉर्मेशन करने वाले हम। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर, ओके, पॉलीमर properties are closely related to their molecular mass, size and structure, तीनों के साथ जुड़े हुए mass, size and structure. The growth of the polymerase chain during their synthesis is dependent upon the availability of monomers in the reaction mixer, ठीक है। Then thus the polymer sample contains chain of varying lengths and hence the molecular mass is always expressed in the form of average mass हमें लेना पड़ता है, ठीक है। The molecular mass of the polymers can be determined by the chemical or physical methods, कोई भी physical और chemical method से आप उसको determine कर सकते हो, ठीक है। Then biodegradable polymer, okay, आजकल आप देखो मार्केट में जो भी पॉलीमर्स है, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द पॉलीमर्स दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ठीक है। तो उससे क्या होता है तो कि एक्यूट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जनरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म वो डिग्रेड नहीं हो रहे। दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू इट, ओके। केमिस्ट जो है, ठीक है, उनका चैलेंजेस ऐसा है कि वॉट एवर द न्यू पॉलीमर्स दे आर गोइंग टू बिल्ड, ओके, जो नए पॉलीमर बना रहे हैं वो सब कैसे होने चाहिए, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो एनवायरनमेंट को कोई इश्यू ना हो, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास PHBV, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसका, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटीरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PHBV, ठीक है। कैसे बनाना है तो कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड का कोपोलिमराइजेशन हमें करना है, ठीक है। फिर PHBV is used specialty in packaging, orthopedic devices and controlled release of drugs, okay. PHBV undergoes the bacterial degradation in the environment, so कोई चिंता नहीं है, ठीक है, ये पूरा बायोडिग्रेडेबल है। देन आप रिएक्शन देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड हमें ले लेना है, ठीक है। दोनों का कोपोलिमराइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। COOH में से OH, COOH में से OH, ठीक है। तो OH एक जगह से H लॉस ऑफ वाटर होने वाला है और PHBV का फॉर्मेशन करने वाले हैं, ठीक है। देन सेकेंड दैट इज नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ओके, सेकेंड biodegradable polymer that is nylon 2 nylon 6, okay. So it is an alternating polyamide copolymer of glycine. Glycine is an amino acid which is having the structure like NH2 CH2 COOH and aminocaproic acid which is having the structure NH2 CH2 5 times COOH, okay. और ये बायोडिग्रेडेबल है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, अमीनो कैप्रोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर होने वाला है, ठीक है, बाकी सब कंबाइन होकर हमें नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। देन पॉलीमर्स ऑफ कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, ठीक है, पूरे चैप्टर में जितने भी पॉलीमर्स आए उसका यूजेस और स्ट्रक्चर मोनोमर क्या है, ठीक है, दैट हैज बीन गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेटेड फॉर्म, ओके। तो सबसे पहला है पॉलीप्रीन, प्रोपीन मोनोमर है, उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यूजेस मैन्युफैक्चर ऑफ